Okay, Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is Genomic Library and the construction of the Genomic Library. So, first of all, what is a Genomic Library? Genomic Library is a collection of the total genomic DNA of an organism. The collection of total genomic DNA of an organism. So what is genomic DNA? The genomic DNA is the DNA which is present in a cell of an organism. Okay, the other one is a cDNA. cDNA is the DNA when we obtain the mRNA from an organism and we change and convert that mRNA to cDNA to DNA. That DNA is called cDNA. So the cDNA is the DNA which is copied from the RNA or mRNA, and genomic DNA is the DNA which is obtained from directly from the nucleus or cell of that organism. Once that DNA is collected, then the DNA is stored in identical vectors, and then those vectors are inserted into the bacterial or yeast cells. So the construction of the genomic DNA library involves certain steps. So the first step in the construction of the genomic DNA is the construction of the first step in the the construction of the genomic library is the fragmentation of DNA. What do we mean by the fragmentation of the DNA? The DNA is converted into pieces. The genomic DNA is obtained. The genomic DNA is first of all is obtained from the nucleus of an organism or from the cell of the organism, and that DNA is then fragmented into pieces. The fragmentation of the DNA can be done with the help of restriction enzymes, and these restriction enzymes are used. Already that the restriction enzymes have certain enzymes have certain recognition sites. So once we obtain that DNA, the date is mixed with a certain एक ख़ास किस्म का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाता है. वो ख़ास किस्म का इसके आप एक यूज़ करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं आपने ECOR1 यूज़ करना है, BAMH1 यूज़ करना है, SMA1 यूज़ करना है, KPN यूज़ करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप एक इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक. तो इस DNA पर जहाँ पर भी उनका रिकग्निशन साइट होगा, वो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वहाँ पर उन पर कट लगाएगा, उनको काटेगा, and the genomic DNA is fragmented into pieces. Keep this thing in mind. कि होगा क्या कि restriction enzymes इस genomic DNA में जहाँ पर उनका recognition site होगा, restriction enzyme वहाँ पर bind हो जाएगा, और जब bind हो जाएगा तो bind होने के बाद उन पर कट लगाएगा, and this DNA can be fragmented or converted into pieces depending upon the size. उस पर depend करेगा. ठीक. Now the important thing here is to note, जब ये DNA इस पर कट लगाएगा, इसको रीड करें थोड़ा सा, इस जो लास्ट सेंटेंस है, I hope you can see it. Yes, so the pieces of DNA produced through complete digestions are small. इनको हम complete digestion भी कहते हैं. जब genomic DNA लेते हैं और उस पर restriction enzyme को use करते हैं, तो जहाँ पर भी उनका recognition site होगा वहाँ पर कट लगेगा. इस process को हम कहते हैं complete digestion. इस complete digestion के process के नतीजे में जो pieces of DNA बनेंगी, they are small. छोटे पीसेस बनेंगी. क्यों छोटे पीसेस बनेंगी? कि जिधर भी उनका रिकग्निशन साइट होगा उस पर कट लगाएगा. तो the DNA molecule be highly fragmented into small pieces, therefore they need large number of primer. तो जितने पीसेस बनेंगी उतने ही नंबर में उनके लिए large number of vectors, not primers. ये करेक्ट कर, large number of vectors
तो जितने इधर देखें तो जितने उनके लिए जितने पीसेस बनेंगी उतने ही उनके वेक्टर की ज़रूरत होगी। और दूसरा उसका नुकसान ये है कि जब स्मॉल पीसेस बनेंगी, दूसरा नुकसान उनका ये है कि अगर ये जीन के दरमियान देयर इज़ अ जीन और उस जीन के दरमियान कहीं पर उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकग्निशन साइट है तो उस जीन को भी दरमियान में काटेगा। सो देयरफॉर ये जो कंप्लीट डाइजेशन है उसके दो नुकसान हैं। एक ये कि बहुत पीसेस बनेंगे और बहुत पीसेस के लिए बहुत से प्लाज्मिड या वेक्टर्स की ज़रूरत होगी। और दूसरा ये कि अगर जीन्स के दरमियान उसके रिकग्निशन साइट आएंगे तो जीन्स जो है वो इंटैक्ट नहीं रहेंगे और वो जीन भी दरमियान से क्या हो जाएंगे, उनकी ब्रेकिंग हो जाएगी। सो देयरफॉर दीज टू आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इस वजह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट फिर क्या करते हैं, पार्शल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। एक है कंप्लीट जो पहले हमने पढ़ा कंप्लीट, फिर हम क्या करते हैं, पार्शल फ्रेगमेंटेशन। तो पार्शल फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं, तीन तरीकों से कर सकते हैं पार्शल फ्रेगमेंटेशन। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज रिड्यूस्ड। जब आप एंजाइम्स कम इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन कम होगी। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम्स कंसंट्रेशन, कि एंजाइम्स ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर एंडोन्यूक्लियस ज़्यादा होगा तो फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप एंडोन्यूक्लियस को कम रखेंगे तो फ्रेगमेंटेशन कम होगी। तो इस केस में हम फ्रेगमेंटेशन कम रखते हैं। हाउ टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा कि अगर हम थोड़े टाइम के डीएनए को थोड़े टाइम के लिए एक्सपोज रखेंगे टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डीएनए की ब्रेकडाउन होगी लेकिन कम ब्रेकडाउन। अगर आप एक्सपोज करेंगे, अगर रिएक्शन को ज़्यादा टाइम के लिए रहने देंगे तो वो ज़्यादा ब्रेकडाउन करेगा। अगर थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो फिर वो कि वो रिएक्शन जो है वो होगा, थोड़ा सा रिएक्शन होगा। और क्यों थोड़ा होगा, बिकॉज यू आर एक्सपोजिंग द डीएनए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो एंजाइम को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा कि वो ज़्यादा ब्रेक डाउन करे। तीसरा ये द एंजाइम इज वो टाइम के लिहाज से द एंजाइम इज नॉट केप्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। हम जानते हैं कि अगर हम एंजाइम्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत एफिशिएंटली काम करता है। यहाँ पर एंजाइम को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा उससे 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड आगे पीछे रखेंगे तो एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कम हो जाएगा। और इन सारी सूरतों से जो डीएनए की ब्रेकडाउन होगी तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी, पार्शल होगी, और इसके नतीजे में जो पीसेस बनेंगे वो लार्ज पीसेस बनेंगे एज कंपेयर टू द पार्शल डाइजेशन। तो इस चीज़ को जहन में रख लें, ठीक। सो ये हमारे पास ये हमने तीसरा तरीका जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, सोनिकेशन। द थर्ड मेथड इज कॉल्ड सोनिकेशन। I hope you can see it. Okay, the third method is called sonication. Sonication is what is, first of all, I'm mentioning what is sonication. Sonication क्या चीज़ है? Sonication is the use of applying sound energy to agitate, to stir, shake particles or chemicals in a solution. जब हम sound energy provide करते हैं, ultrasonic वेवलेंथ्स होती हैं ये, जब हम ये प्रोवाइड करते हैं तो अगर किसी सोल्यूशन में, किसी सैंपल में हमारे पास पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, तो वो बहुत तेज़ी से उनमें स्टरिंग हो जाती है, शेकिंग हो जाती है, एजिटेशन हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, उसमें वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा शेकिंग या स्टरिंग या एजिटेशन हो जाती है। अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन में डीएनए है तो वो डीएनए में भी एजिटेशन हो जाएगी, और जब हम उसको सोनिकेशन को एक्सपोज करें एंड दैट डीएनए विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये एंजाइम्स के ज़रिए, दिस इज़ द केमिकल मेथड, कि आप एंजाइम के ज़रिए उनकी ब्रेक डाउन करें, पार्शल ब्रेक डाउन करें, कंप्लीट करें। तीसरा तरीका ये सोनिकेशन जो ये फिजिकल मेथड है कि आप एजिटेट करते हैं डीएनए को बहुत तेज़ी से विद द हेल्प ऑफ द साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक
वेव्स उनके ज़रिए। तो जब आप डीएनए बहुत तेज़ी से एजिटेट हो जाएगी, उसकी स्टरिंग हो जाएगी, शेकिंग हो जाएगी, सो द डीएनए कुड बी ब्रोकन इनटू पीसेस। तो ये फ्रेगमेंटेशन में हम पीसेस प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। ओके, once we produce pieces of DNA, then these pieces of DNA are inserted into the plasmid। जिस तरह हमने recombinant DNA टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि प्लाज्मिड को भी हम ओपन करते हैं। लेट्स से दिस इज द प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड जो है दैट कुड बी ओपन विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो now we have this plasmid. Okay, plasmid is open and this is the piece of DNA. So the piece of DNA is inserted into the plasmid with the help of ligases. Already हम ये पढ़ चुके हैं। Again, this is the plasmid is opened with the help of restriction enzyme। ये जो piece of DNA है, it has already been produced with the help of the restriction enzyme, and now ligases are used to join these two DNA molecules together। और जब हम इसको join करते हैं, अब ये the plasmid along with the piece of DNA is known as what? A construct कहलाता है। क्या कहलाता है? Construct कहलाता है। तो हर एक plasmid में एक piece of DNA जो है वो insert हो जाएगा। So the DNA is converted into pieces by any of the above method is then inserted into the vectors. Plasmids are phage. Ligases help in joining the piece of DNA together. Okay, ये हमारे पास construct बन चुका है। Okay, then ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट बन चुका है। देन वी हैव the next step is this method is the transformation of bacterial or yeast cells with construct। आप बैक्टीरियल सेल्स को या yeast cells को expose करते हैं into the plasmid having the gene of interest or the piece of DNA। तो उसको expose करेंगे, वो जो plasmids हैं जिसके पास piece of DNA है, वो उस बैक्टीरियल सेल या उसके अंदर चला जाएगा और फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन काज करेगा और उनको फिर हम -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब स्टोर करते हैं। सो आफ्टर that storage the plasmids can be produced। Diagrammatically we can observe them like this। Okay, this is the total DNA molecule। This is the total DNA molecule, and we use, for example, EcoR1, and these are the recognition sites of the EcoR1। So the EcoR1 will come and join with the recognition site and will make a cut here on the DNA molecule। So this DNA molecule can be broken into pieces। You can see the piece in the one piece, another piece there, some are small, some are large, so different types of pieces of DNA molecule are produced। And this method is actually, ये जो step है ये हमारे पास क्या है? This is actually fragmentation। ये क्या है? This is fragmentation जो हम करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ये हम करते हैं, ठीक, ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है। वंस वी प्रोड्यूस फ्रेगमेंट्स देन देयर आर प्लाज्मिड्स, जिसको ऑलरेडी हमने ओपन किया है इस प्लाज्मिड्स को, और उसमें ये पीस यहाँ पर इस प्लाज्मिड में, द पीस इज हेयर इन दिस प्लाज्मिड, दिस पीस इन दिस प्लाज्मिड एंड द पीस हेयर इन दिस प्लाज्मिड। सो नाउ दीज आर नोन एज व्हाट? द प्लाज्मिड्स विद द piece of DNA from the genomic DNA, and these are now known as what? These are known as constructs। ये क्या कहलाते हैं? construct कहलाते हैं। जब construct प्रोड्यूस हो जाएं तो फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? in the next step what we do, these are the bacterial or the yeast cells, जहाँ पर हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं with the help of the constructs। तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। सो नाउ दीज आर द बैक्टीरियल सेल्स with constructs, bacterial cells with constructs। And what is construct? The plasmid having a piece of the genomic DNA or the gene of interest, जब हम उसको recombinant DNA टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। And these bacterial cells and yeast cells then can be stored at low temperature, उसको हम डॉर्मेंट रखते हैं, ठीक। तो ये हमने जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो कंस्ट्रक्ट की है। हमने डीएनए ली है एक ऑर्गेनिज्म से, उनको पीसेस में कन्वर्ट किया है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। उन पीसेस को फिर इंसर्ट किया है प्लाज्मिड्स पर, जब विद द हेल्प ऑफ लाइगेजेस जब इंसर्ट करते हैं तो ये फिर कहलाएंगे कंस्ट्रक्ट।
वो कंस्ट्रक्ट के ज़रिए फिर हम बैक्टीरियल या यीस्ट सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन काज करते हैं। अब इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा क्या है? तो एक ये यूज़ होता है, ये जीनोमिक लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं इन डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक, जब हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं तो उन मेथड में ये इस्तेमाल होता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। हेल्प इन फाइंडिंग म्यूटेशन, अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, हम 2 या 3 या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की डीएनए को मैच करते हैं, उनकी सीक्वेंस मालूम करते हैं, तो हमें पता चल सकता है कि कहाँ पर किस डीएनए मॉलिक्यूल में म्यूटेशन हो गई है और कहाँ पर ये म्यूटेशन हो गई है। एंड दैट इस तरीके से हम जो हम कहते हैं कैंसर के बहुत से काजेस हो सकते हैं, वन काज ऑफ द कैंसर इज म्यूटेशन। तो जहाँ पर म्यूटेशन हो चुकी है इसके ज़रिए हम वो भी डिटरमिन कर सकते हैं। तीसरा, हम कंपैरिजन कर सकते हैं मुख्तलिफ जीन। हमारे पास जीन्स हैं, एक जीन है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का, उनकी आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं वेदर दीज जीन के जो सीक्वेंसेस हैं वो एक जैसे हैं या उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, या उन जीन्स के जो रेगुलेटरी पोर्शंस हैं वो एक जैसे हैं या एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक, ये भी कर सकते हैं। और बाय दिस, अगर जब हम ये सीक्वेंसिंग करते हैं और ये सारे काम करते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी फिर सीक्वेंसिंग, तो इनके ज़रिए हम जो मुख्तलिफ न्यू किस्म के जीन्स हैं उनको भी डिस्कवर कर सकते हैं। कि ह्यूमन बींग्स के सो फार वी नो के देयर आर 20,000 प्लस जीन्स हैं। अगर हम ये सीक्वेंसिंग करते हैं या कि कोई फंगस है उसके जीन्स या कोई और ऑर्गेनिज्म उनके जीन, अगर उनकी हम ये जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएं, उनकी सीक्वेंसिंग मालूम करें, सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट के न्यू जीन्स इन दोज ऑर्गेनिजम्स। Okay, so this is all about the genomic library. Thank you.